Good morning, everyone. So, my name is Kushal Jain. I am state trainer and youth president from PMJKY PPA Karnataka. And today we are going to share about business growth and importance of MSME schemes post COVID-19. And it's my privilege to have you everyone on Facebook Live. Also, I know you have joined through various Facebook groups. That's great, actually. And I would like to thank the PMJKY PPA special, that is Pradhan Mantri Jan Kalyankari Prachar Prasar Abhiyan team, especially President Pushesh ji Arya ji, or next our Sri Shashank Chopra ji. Then we have Rajmani ji, who is our national trainer head. Um, okay, and we have Prashant Devan, we have Ashok Negi ji, and Vishal Negi ji. So we have various team along with us. I would like to thank all the national team. Plus Karnataka team from our Bangalore. We have Amita Rani Pandey ji, who is national Karnataka state president, and we have Lalit Laklia ji, who is IT cell member of PNJK by PPA Karnataka. We have Secretary Bharat Jain, Dinesh Hardik Patel. Then we have Chitarasan, and we have legal team also Ravinjay. So we have a lot of people in our board and who have supported us to go this event live. Along with us, we have a team of people who are going to share the golden nuggets and the information related to your business growth also, and about a lot of MSME schemes. We might not go in depth in detail, but we may share you a lot of information which could be useful. If you have still questions or you want to ask something to us, what you can do is, wherever you are seeing this video, you can post it in the comments section if you have any questions or you need more information about those schemes. So what we are going to do is, myself and there are a lot of moderators on all the pages, be sharing those questions to us or the information required by you, so that we can provide you those information on your tips. And second thing is this live video which we are on Facebook live. So this is being watched across India. So all from different languages, maybe from Karnataka, we have Tamil Nadu, we have from Maharashtra, Kerala, various places. So keeping in that mind, so what we are thought of is going with the language English, so that it would be easy to translate or understand, rather than going with the regional language. So I would recommend and thank you everyone for your participation also, because without you we could have not gone this live. So I would really thank you for watching us. So let me invite our first speaker, Mr. Rajesh Lott, who is a corporate trainer from last 15 plus years. He has done training, thousands of training till date, and he has been associated with training industry, majorly working with startups and entrepreneurship team. So I would be also will be going through the presentation as well, where he could be explaining you each and every part of the schemes. And then we'll have the another speaker, Mr. Chandrasekhar, who is also a trainer and he's an entrepreneur, having an experience of more than 30 plus years. Okay, so I really thank my team, Rajesh Rao, Chandrasekhar, everyone who have supported and come forward in terms of sharing their knowledge. Uh, Thank you. So I would like to invite Mr. Rajesh Rao to share his experiences, and also to start with little introduction about you if I missed it. And maybe you can also start sharing about the scheme and how we can take our business to the next level. So over to Mr. Rajesh. Namaskar, friends. Thank you, Mr. Kushal, for the wonderful introduction. He has almost told everything about me. I being a soft skill trainer with startups and other entrepreneurs, and also with corporates. Coming back to the Pradhan Mantri Kalyankari Yojanas of Prasar and Prachar Vibhag. First topic that I will share is of Mudra scheme. As the word Mudra, there is a full form for this. That is Micro Units Development and Refinance Agency. This is what Mudra does. And it is a refinancing institution, and they don't lend money directly to the individual or corporates. I will just on the screen so that everyone can also see. So just a moment, then you can start again.
Yes, the screen is ready. Now you can share from here. Yeah. Okay. We'll go to the Mudra. Yes. So as I was saying, Mudra is micro units development and refinance agency, and they don't directly give money to the individual or entrepreneurs. They help the individuals through RRBs, that is regional rural banks, small finance banks, micro finance institutions, or NBFCs to provide loans to any entrepreneur or individual who aspires to start his own business. And the amount is from 1 lakh to 10 lakh rupees. And one thing that one must remember is uh, Mudra doesn't employ any of the brokers or agents or middlemen. It is directly the individual and the or the borrower with the finance sector. If someone wants to apply online, they also can do that with Udyami Mitra portal. The Udyami Mitra portal, you can directly apply for a loan, and there's a website www.udyamimitra.in. There also you can apply based on the project plan, like your investment details and all that. The team at Mudra decides whether you are eligible for 1 lakh loan or 5 lakh loan or 10 lakh loan, because there are three different sections. One is Shishu, one is the other one is Kishore, and the third one is Tarun. So in Shishu, you are eligible for 50,000 rupees loan. For Kishore, 50,000 to 5 lakh rupees loan, and for Tarun, it is 5 lakh to 10 lakh rupees loan. Now, what is the benefit of Mudra scheme? It is a technology enabler. Uh, we will in coming minutes we'll talk about digital and all that. So Mudra definitely helps to enable technology wherever is involved, and it is a refinancing micro units uh, for commercial banks, meaning they take your personal guarantee. You don't have to submit any collateral. They the Mudra's team supports you to avail loan, and they tell the finance institute that yes, we guarantee this person. Please provide loan to them. And there are others area is development and promotional support. They support in sectoral development, they support in finance literacy, they support in institution development. And funding from Mudra are done through two types. One is micro credit schemes, or second is through the NBFC. Now, micro credit scheme, we spoke about you seeking loan and starting your business. If you want to also help other citizens in financing, you also can partner with Mudra, and you can provide small loans like 1 lakh rupees to anyone, and then you will get your due interest and all that. So that is one way of Mudra helps. So this is a partnership with the people, general people. So that's also another way of earning money and getting involved with the scheme. And others are definitely microfinance unit, the small finance banks, the regional rural bank, and if it is a bigger thing, then NBFCs. And the benefit is what RBI has told all these NBFCs and regional rural bank, that if they provide a loan, means they provide loan to any ST/SC community or any woman entrepreneur, they will get 25 basis point discount for giving the loan. So please understand the kind of importance government is giving to the finance institution to disperse the amount and to make things more easier for general public to start their own business. Idea is nobody should stay back, or nothing should stop them for want of money. You have idea, you have a great market, you have good connectivity. Money is the concern, Mudra is the answer. That's the purpose. And this is for any kind of business. You name anything, it is there. Business loan for vendors, traders, shopkeeper, service sector activities, working capital loan, equipment finance loan, transport vehicle loans like auto, three-wheelers, or even two-wheelers. Suppose I am in a bakery and I'm making bakery product and I'm supplying bakery items to different bakeries in the city, but I don't have a two-wheeler. So
The Mudra scheme helps me to buy a bakery, a two-wheeler. Tractor, tailors, you name it, and they are into every possible thing. And even if it is for salon or beauty parlor or gym or boutique or tailor shop, you name it, they provide for food product, food stall, textile product. So idea is there is nothing that you can't touch upon that Mudra scheme doesn't provide you. And but the point to make is this is only till 10 lakh rupees, and you don't have to worry about the collateral, because normally the loans are given against an asset. So that's called asset-based lending approach. But because Mudra comes in, they verify your details, and then they certify you, yes, you are eligible for this loan. So they advise the finance institution and they give you the loan. Kushalji, if we can move to the next slide, please. Digital India. Friends, all of you must be aware the Prime Minister's stress on Digital India. This is one thing that will take us in this century to definitely a different level altogether. And that level will be not only very prospective, very constructive, but also one of the most promising initiative, I would say. And for anyone's identification, we have name. But as a country, as a whole, a citizen, one identification that we have is Aadhaar. And this identity platform is a key pillar to Digital India. And I will tell you how this Aadhaar, that I'm sure all of you have Aadhaar, you have Aadhaar number, and how this will help you to achieve all your digitally related activities. The scheme has come with DigiLocker. It's a digital wallet to empower citizens digitally. It is a secure cloud-based platform of issuance, sharing, and verification of critical lifelong documents or certificate. Imagine a situation if somebody's physical certificates are stolen. What will he do? He possibly cannot get those certificates. But in today's world, you can have all your certificates and all that stored in DigiLocker. Today also, if you go out and traffic police ask you for any document, you can produce your driving license, your insurance, your RC book, everything in DigiLocker, and court has told this is admissible. The traffic police will have to validate this part. You don't have to physically carry that. So this is the idea of promoting digital locker. And this will also enable government to run their show paperless. No, you don't need to stock all your files and all that. If you have a digital data, you can just refer anything. And coming forward, the revenue department will vouch for this. And now buying properties, selling property is so clean because everything is has a digital record. You don't have to forge a document. And that is the beauty of this particular scheme. Now, the other scheme is Digi Sevak. Friends, you must have seen we are going through tough times, and people are without food. People are stranded alone at different place other than their native place. And then there are other set of people who want to help, but they don't know whom to help, how to help, and where to help. So Digi Sevak is one such scheme, which is a volunteer management system where you can online register yourself as a volunteer on different schemes. You might be financially well off. You might be wanting to donate some food or clothes or your time for education. The idea could be anything. So there is a database created for what you are good at and what is your available time. And whenever there is a requirement, the government will go to this database and find out and ask you. Suppose I want to teach kids in rural areas. And I have registered myself in VMS, that is Volunteer Management System. So government will reach looking at the database. Hey, Rajesh, can you please come and coach our children for 15 days, 20 days, because they're having summer vacation or whatever. And then I raise my hand, and that's how it happens. So people should not be looking for help in the time of help. We have seen there is definitely NDRF team, National Disaster Recovery Force, but they are limited. And it is not always that we will look at the government for help. We as a citizen also can do a wonder. And that's why this scheme has come. And this is one of the most remarkable schemes where we not only live for ourselves, but live for others. And that will bring a great change in the country as far as helping the
fellow citizen is concerned. The next scheme is Disha, that is Digital Saksharta Abhiyan. Now, this is also one direction where we are talking about teaching everyone. And this is also through digital. And the idea is it provides the proper education, and one subsection is e-basta, meaning government wants to get rid of the physical book and change that to e-book. So people can have or children can have in their mobile or their laptop or their desktop e-book, and they can read and then they can pass on the same thing to their younger brothers or their neighbors, and that's the idea. What's the benefit of being digital? Being digital is one thing, there's no middleman. The other one is there's no duplication. The next thing is this very efficient and effective manner of dealing things, and transparency, of course, is very much there. Okay. The next is GEM. Friends, if you understand, no government sector today does any kind of procurement without GEM. You have to be a vendor registered at GEM, that is Government E-Marketplace. Anything that may it be army or may it be railways or may it be anyone, they would want that you have to come through GEM, and hence this has definitely enabled us to do our business in best possible manner, where they have the list of all the vendors and their product and their price, and then they decide which product or which price I will go. So there is no hidden cost or quality wise everything is concerned. As we are talking about digital, and we also discussed that Aadhaar is the identification of an individual. So it has also helped us in integrated health information plan. If I'm moving from one city to the other city, I need not carry my entire medical document with me. I just go there, tell my name, tell my Aadhaar card, the database will throw up all the details that is related to my medical history. So this has also helped us in a big way. Many people don't remember their age. Can you imagine in our country? And what will they remember? Their blood group, or how will they remember what happened in the previous, whatever doctor wrote, they wrote in a piece of paper. Piece of paper for some reason got lost. But when you have this integrated health information plan, anyone can be treated anytime with the information that is provided, stored and managed. And the list is endless actually. There is IRCTC Connect railway reservation. There's Meghraj for cloud computing. There is Swift single window interface trade. So list is endless, but as I thought in paucity of time, these are the only one that I could speak of. So you will say, what is my benefit in this? Friends, you have benefit in all possible way. You can be a community worker, a DigiSevak. You can help yourself in Disha. You can be a very good vendor in terms of GEM. And of course, integrated health will not only help you, but your family members, your neighbors. If they don't know, please inform them about this. Kushalji, next one, please. Start up and stand up India. Awesome. This is definitely a very important thing, and then we'll discuss why it is so. SIDBI, SIDBI, Small Industry Development Bank of India. Okay. They provide loans from 10 lakh to 1 crore. Earlier we discussed loan till 1 lakh, 10 lakh, from 1 lakh to 10 lakh, but this is little higher. So now things are becoming little serious now. And this also encourages that every branch in the country, whoever is dealing with finance, microfinance or small bank finance or regional rural bank or NBFC or normal PSU banks, they must have one ST or woman entrepreneur have availed this facility, because that's, if more the merrier, but at least one should be there. So it is the onus of the bank manager or the manager of that department to chase people, encourage them to take loan and start their business. They want to set up a greenfield enterprise, meaning greenfield enterprise in manufacturing, in services, and in trading sector. If you want more details, we can have a lengthy discussion on that. And in case there is no individual found, a group of people can also form a group and then apply for this loan. But one thing they have to keep in mind, that 51% of the stakes should be with the ST/SC community or a woman entrepreneur. And with that, the loan, getting the loan becomes easy. राजेश Now जी, start. राजेश जी, थोड़ा बहुत हिंदी में भी बोलना करके रिक्वेस्ट आ रहा है, तो ठीक maybe है, you can just see wherever you can add in Hindi also. ठीक है, थैंक यू। मैं थोड़ा इंग्लिश में चला गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुविधाएं बहुत हैं, आपको
थोड़ा देखना है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें से फायदा उठा सकते हैं और हम ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, आप हमको मैसेज कर दें, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और हम आपके से संपर्क करेंगे। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, अभी हमने स्टैंड अप के बारे में बोला, अभी हम स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। स्टार्टअप इनिशिएटिव भी बहुत ही उम्दा इनिशिएटिव है। ये भी एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए एक रोबस्ट प्लान बनाया है, और इनका मेन कारण है कि इंडिया दुनिया में जाके जॉब ना ढूंढे, रेदर इंडिया में लोग आके जॉब ढूंढे, ये है एक्चुअल मकसद। तो अगर आपको इंडिया में जॉब ढूंढने आना होगा तो आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना होगा। और क्या अच्छा टाइम हो सकता है 2020 में 6 से, जब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि यहाँ पे ही हम बिजनेस करेंगे। They want to set up their shops in India. May it be Europe, may it be America, may it be Korea or Japan. They are closing down shops somewhere else, and they are now planning to come here because they very well know हमारे पास कुशल कारीगर हैं, हमारे पास दक्ष ये है, और आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे और भी सारे फायदे आ रहे हैं। उसके बारे में मैं मेक इन इंडिया में बात करूंगा। सो यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया में एक डेडिकेटेड टीम है। आपको खाली अपना आइडिया लाके लाना है कि आपको इस डायरेक्शन में करना है, वो टीम उसके बाद आपको हेल्प करती है। कुछ भी आपका आइडिया हो सकता है, ठीक है? और हमारा देश आइडिया से कभी कम नहीं रहा है। हम ही हैं जिन्होंने जीरो दुनिया को दिया है, और अगर मैं लिस्ट गिनाऊंगा तो रात बीत जाएगी। लेकिन बोलने का कारण है कि हमको सोचना है। और ये जो तीन टीम है, ये 3 पिलर्स ऑफ स्टार्टअप इज सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। ये क्या करते हैं, आपका हाथ पकड़ के आपको उस पार लेके जाने की क्षमता रखते हैं, और पूरा मैटर ही सिंप्लीफाई करके आपको बताते हैं। दूसरा है, इसमें क्या होता है, इजियर कंप्लायंस, इजियर एग्जिट प्रोसेस फॉर फेल्ड स्टार्टअप, लीगल सपोर्ट, फास्ट ट्रैक पेटेंट एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए कुछ कागज का, इसका उसका कुछ ये है, ये उसको इजी कर देंगे। अगर कोई फेल हो जाता है, उसको निकलने में परेशानी होती है, उसको भी वो हेल्प करते हैं कि भाई आप पूरा लॉस मत लो, ऐसा करो वैसा करो। और पूरा लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो टीम है स्टार्टअप की। और अगर कोई नया आइडिया है उसका पेटेंट भी करते हैं। आपको पता है पेटेंट से बहुत फायदा होता है। अगर ये आपका आइडिया है तो इसका फायदा आपको ही मिलना है। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका। नहीं तो पहले जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पता ही नहीं चलता था कि मैंने इसको बढ़ाया है या किया है, ठीक है। और एक ये वेबसाइट भी आपके लिए बनाते हैं ताकि आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और दूसरा है, पहले था सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, दूसरा है फंडिंग एंड इंसेंटिव। ये आपको फंडिंग भी में हेल्प करते हैं और इंसेंटिव भी देते हैं। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है फिर आपको और भी उसका फायदा देते हैं। एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स में भी आपको हेल्प करता है। फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स ए फंड ऑफ फंड्स, आपको जितना मिला है क्योंकि आपने उससे प्रॉफिट दिलाया है, और भी उसमें फंड देने का भी क्षमता रखते हैं, ठीक है। और तीसरा है इंक्यूबेशन एंड इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप। तो ये आपको और भी उसमें, अगर आपने किसी चीज को स्टार्ट किया उसमें और भी आपको नॉलेज देते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, आप अपने कंपटीशन से कैसे आगे रहें, उसका भी उसको हेल्प करते हैं। वो आपके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ ग्रांट दिलवाते हैं, और बहुत सारा एक्सपोजर भी दिलाते हैं। तो ये है स्टार्टअप का ये। और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अगर आपको पता नहीं होगा, जब ये कोविड-19 का ये हुआ, पूरे दुनिया भर बंद हो गया, तो एक ई किराना सप्लाई करके जो स्टार्टअप इंडिया में चालू हुआ, उन्होंने ये कहा कि कोई भी छोटा दुकान हो जिसका 1 लाख का भी टर्नओवर हो या उससे भी कम हो, उनके सप्लाई को रोका नहीं जाएगा। तो उसमें भी ये स्टार्टअप का ये चालू रखा। जिसके पास स्टॉक था उनको बोला गया आप ये सामान छोटे छोटे दुकानों में पहुंचाइए ताकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों में परेशानी ना हो। दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिशिएटिव। इसमें इतना है कि अगर आप अपना मैच मेकिंग भी चाहते हैं ना, आप शादी करना चाहते हैं, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इतना है स्टार्टअप इंडिया में। तो नए तरीके से आप कैसे इसको ला रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम की लिस्ट गिनाऊंगा तो कसम से बहुत है, लंबी है। और भी अगर आप अपना भी नया जोड़ना चाहते हैं, आप जोड़ सकते हैं, अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं। आप यू कैन ऑल्सो बी ए पार्टनर ऑफ स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया इन अ बिग वे। विल मूव टू मेक इन इंडिया। ये तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। सरकार ने सोचा है 16,40,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का मेक इन इंडिया में।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया अभी इंडिया की तरफ देख रही है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी सारा खेल इंडिया में हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में होगा। और ये सोच रहे हैं कि 2022 तक, बाई 2022, इंडिया जीडीपी ग्रोथ में 25% मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर ऐसी सोच है तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए चेष्टा भी कैसी हो रही होगी। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि दुनिया का भी रवैया बदल गया है। एक पर्टिकुलर देश से अभी सारे इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमारी तरफ। तो इससे ना तो ना ही केवल हमारा जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। तो और दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने और फायदा किया है कि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें क्या हुआ है, स्पेस इंडस्ट्री को छोड़ के, जो स्पेस रिलेटेड है 74%, डिफेंस 49%, मीडिया 26% को छोड़ के बाकी सारे इंडस्ट्री में आप 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सरकार का बहुत बड़ा है। अच्छा, इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 190 देशों में हम एक्चुअली 100 के ऊपर थे, लेकिन इसी सब छोटे छोटे जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं, हम और नीचे नीचे आ गए हैं। ये एक ऐसी जगह है जितना नीचे हम आएंगे उतना अच्छा रहेंगे। जैसे कोविड में हम जितना नीचे रहेंगे उतना अच्छा है, माने हमारा नंबर इफेक्टेड का कम है, मरने का कम है, तो हम अच्छे हैं। ये वो गोल्ड मेडल वाला नहीं कि नंबर अगर ज्यादा हो तो अच्छा है। एंड और बाकी सारे छोटे छोटे जो स्टेट हैं उन्होंने भी अपना नया नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जैसे मेक इन उड़ीसा, तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट, वाइब्रेंट गुजरात, हैपनिंग हरियाणा, मैग्नेटिक महाराष्ट्र। मैं तो बोल रहा हूँ कर्नाटका में भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं करेगा कर्नाटका, ऐसा इनिशिएटिव भी हम कर सकते हैं। और उससे हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं। एंड डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भी हम काफी सुधर गए हैं पहले से, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम सुधर गए हैं। और सरकार का 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है इस मेक इन इंडिया ये में। क्या है वो ऑब्जेक्टिव? टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ रेट टू 12 to 14% पर एनम। हर साल 12 से 14% इंक्रीज करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ। इस साल थोड़ा 2-3 महीने थोड़ा खराब रहा, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये हरकत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। And to create 100 million additional job in manufacturing by 2022, 100 मिलियन जॉब नया ऐड करना है, ये सरकार का एक सोच है। और मुझे पूरी तरह विश्वास है ये हो जाएगा। To ensure that manufacturing sector contribute to GDP in 25%, और जैसा मैंने पहले बताया 25% GDP का सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कमाना चाहती है। और इससे बड़ा कमिटमेंट क्या हो सकता है, और इससे बढ़िया टाइम क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये था मेरा आज का आंकलन। इसके अलावा देर बहुत सारी चीजें जैसे जन औषधि के बारे में और वो सब, अगर आप ज्यादा विस्तार में जानना चाहते हैं आप हमारे फेसबुक लाइव में या हमारे ये में आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही है आज के लिए। नमस्कार। Maybe you can share little bit about Jan Aushadhi, Rajesh ji. हाँ, ठीक है। अच्छा, जन औषधि, हाँ 2 minutes. हाँ, जन औषधि का एक छोटा सा मैं इतना देता हूँ। ये जो दवाइयां जो बनती हैं उनका केमिकल फॉर्मूला सबका सेम रहता है, ठीक है। वो जब आपके बॉडी के अंदर जाती हैं आपको रोग मुक्त करती हैं, लेकिन क्योंकि इसको बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती हैं तो वो अपने बनाने का खर्च, अपना पुशिंग का कॉस्ट, वो सब का वो पैसा लेती है। एक अगर मैं सिप्रोफ्लोक्सिन का एग्जांपल लूं, वो मार्केट में 125 रुपए 90 पैसे का मिलता है, लेकिन अगर एक जेनरिक उसी केमिकल फॉर्मूला का अगर मैं लूं तो वो 17 रुपए का मिलता है। आप देखिए 17 रुपए किधर है, 1.25 रुपए 1.25 किधर है, 125 रुपए 90 पैसे किधर है। तो इसको सरकार क्या कर रही है, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक फ्री का आपको स्पेस देती है कि आप वहां पे एक जन औषधि स्टोर खोलिए, जिसको JAS बोलते हैं। आप अपना स्टोर वहां पे खोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस देती है, आप खोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको वो 2.5 लाख रुपए तक का हेल्प भी देती है। 1 लाख रुपए आपका फर्नीचर या फिक्सचर लगाने के लिए, 1 लाख रुपए आपका मेडिसिन के लिए, और 50,000 रुपए आपके कंप्यूटर, प्रिंटर या जो भी अदर ये बिल पेमेंट का जो मॉडल है, इंटरनेट हुआ जी, उसके लिए भी आपको देती है। तो उसके अलावा भी 20% ट्रेड मार्जिन भी देती है, और 10% डिस्ट्रीब्यूटर को भी देती है। जो आपको वो देता है उसको भी 10% का फायदा देती है, और 30 दिन का क्रेडिट भी देती है। और बताइए,
तो अगर आपको खाली करना ये है कि अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देखते हैं कि जन औषधि केंद्र नहीं है, तो आप वहाँ के मेडिकल अफसर से बात करिए और बोलिए कि मेरा मानना है कि यहाँ पे जन औषधि करूंगा तो ये बहुत सारे जन कल्याण में होगा। और सरकार अपनी तरफ से प्रचार कर ही रही है कि ये मेडिसिन उस मेडिसिन से कोई अलग नहीं है, केमिकल कंपोनेंट्स दोनों में सेम है। खाली आपको ये करना है कि अगर आपको इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको खरीदिए। तो ये मेरा छोटा सा सबमिशन था ऑन जन औषधि। ज्यादा जानने के लिए मैं फिर से विस्तार में इसका ये करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, इट वाज रियली यूजफुल, रियली इंफॉर्मेटिव। मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपने दिया हुआ, बहुत बढ़िया है। और हमको मालूम है कि इस तरह के जो हम लोग एमएसएमई स्कीम के बारे में अगर ज़्यादा शेयर मतलब बताना भी चाहते हैं तो बहुत, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू गेट इनटू, एंड ईच स्कीम कैन टेक नॉट लेस देन एटलीस्ट एन आवर टू एक्सप्लेन। तो आपने इतने सारे स्कीम को आपने बहुत आसानी से और बहुत सिंपल से समझाया है। So that's very, very good. So I really like your presentation. So I would like to thank you. So it's really good. Thank you, Rajesh ji. Thank you. So now we'll go and move to the next step. Uh, so we'll invite Chandrasekhar, who is also an entrepreneur, and he's a trainer from more than almost 10 years plus, an entrepreneur from last 30 years. He has a good experience. So we will be talking about, right now we have spoken as the perspective of the businesses, what we can use, start, or about the MSME and all. Now Chandrasekhar will be giving more on lights on how we can retain our business, how we can expand our business, keeping our main what do you say, the manpower, because that's the most key important, which I think Chandrasekhar would be better in place to explain in detail. So let me welcome Chandrasekhar. So yes, so yes, sir, you can start. Thank you, Kushal ji, and namaskar, everyone. Rajesh, you did a very great job. You gave a humongous amount of information, and I'm sure all the viewers of this channel will definitely take the benefit. I will be talking more on national social security, which our Pradhan Mantri ji is emphasizing on. You will all definitely agree the 4M business model, where man, method, material, and mode forms the basic foundation for any business, be it manufacturing or trading or service providing. Man forms the basic strong foundation to sustain the business. He forms the rectangle, he forms the rectangle base for the business model pyramid to reach its pinnacle. He plays very important role everywhere. If even if there is an automation, even if there is a highly computerized controlled machines, you require a man to control them and to guide them and to make necessary changes depending upon the future growth. Here, I would like to tell you all that national social security plays a very important role in retaining the manpower employed with us. Basically, man works for some remuneration, but man, apart from the remuneration, he also requires empathy. Empathy, remuneration, and little bit affection will definitely retain him for a long run. COVID-19, when it came, it brought in a lot of anxieties, lot of doubts, which resulted in lockdown. This lockdown has opened eyes of everyone, be it a labor or an entrepreneur. It has shown the hard realities of life. It has shown that we need to lead a life empathetically.
we need to take care of our people who are associated with us. And we also realize that the resources available with us would not help. Hence, I am requesting you to take the benefits of Pradhan Mantri Jan Kalyan Kar Yojana and empower your team empathetically. I would like to tell you something about Pradhan Mantri Karm Yogi Mandhan scheme. This is usually used for unorganized sector and traders, wherein you will be able to get benefit after the age of 60 years. People who are between 18 and 40 can be enrolled. This they will be getting around 3,000 rupees after the age of 60. In case something happens to the insured person, then the spouse will get 50% of the benefit. The most important part in this is the central government pays 100% equal contribution of the person who is contributing. For example, if a person is contributing 100 rupees, the central government contributes another 100 rupees. So total his contribution goes to 200 rupees. This scheme is facilitated by LIC office, Labor office, ESI and EPF offices. Chandrasekhar, so there is a demand saying that maybe you can mix up a little bit Hindi if possible. Sure, मैं करूंगा. अगला स्लाइड से मैं करूंगा. इसमें भी बता दीजिए. ये प्रधानमंत्री श्रम कर्म योगी मनधन स्कीम है, जिसमें सारे ट्रेडर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जितने भी वर्कर्स हैं वो सब इनको कवर कर सकते हैं. इनका ये 18 साल से 40 साल के उम्र के लोगों को ये स्कीम में जोड़ित जा सकता है. ये स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट 100% इक्वल कंट्रीब्यूशन करती है. मान लीजिए अगर कोई इस स्कीम के अंदर 100 रुपए डाल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और 100 रुपए जोड़ के और उस आदमी का कंट्रीब्यूशन 200 रुपया बना देगी. 60 साल के बाद हर महीने आप इस स्कीम में जो भी एनरोल्ड है उसको 3,000 रुपए मिलेगा 60 साल के बाद. अगर बीच में कुछ हो गया तो इनके पत्नी को 50% शेयर मिलेगा. ये स्कीम जारी में LIC ऑफिस, लेबर ऑफिस और ESI और PF ऑफिस के अंदर ये स्कीम हम लोग ले सकते हैं. The next important is again being with people. हम लोग अपने आदमियों के साथ उनके मुसीबत टाइम में रहने के लिए बहुत ही जरूरी है. और ये जब हम लोग मुसीबत के समय हम उनके साथ खड़े होते हैं तो वो कभी हमको भूलते नहीं है. जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षित बीमा योजना दो ऐसी प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी योजना में से है जिसमें हर साल आप जीवन ज्योति के स्कीम के ऊपर 2 लाख का कवरेज केवल 330 रुपया सालाना भरना पड़ेगा. 330 रुपीस पर एनम फॉर इंश्योरेंस वर्थ 2 lakh rupees. This insurance is for 18 to 50 years group. Savings account and Jan Dhan account are compulsory. सेविंग्स अकाउंट और जन धन अकाउंट आपको जरूरत है इसके लिए, और ये सभी बैंक में उपलब्ध है. आपको कहीं किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ अपने बैंक में ही आप जाके वहां पे एनरोल कर सकते हैं. इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है जो 2 लाख तक इंश्योरेंस कवरेज करता है. ये 18 साल से 70 साल के आदमियों को कवर कर सकते हैं और ये 2 लाख
किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो मिलता है, या 1 लाख जो परमानेंट डिसेबिलिटी होता है उस टाइम पे मिलता है। इसका सालाना भरने का है 12 रुपया। सिर्फ 12 रुपये से हम लोग 2 लाख तक एक आदमी का बीमा कर सकते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इस योजना से ये हम लोग अपने लोगों को बहुत ही सुरक्षित दे सकते हैं। 2 लाख किसी को देना सडनली बहुत मुश्किल होगा। अगर हम लोग इस स्कीम को सभी को एनरोल करेंगे तो वी विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड एंड वी विल बी सेविंग आवरसेल्व्स एज वेल एज द पर्सन हु इज बीइंग इंश्योर्ड। उसके बाद अटल पेंशन योजना है, जिसमें आप 40 साल तक किसी को भी एनरोल कर सकते हैं, 18 साल से ऊपर। और ये बेनिफिट हमें 60 इयर्स के बाद ही उपलब्ध होगा। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ ज्वाइनिंग एंड कंट्रीब्यूशन, मिनिमम गारंटीड पेंशन इज 1000 रुपीज पर मंथ टू 5000 रुपीज पर मंथ। हमें इसे एनरोल करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ बैंक अपने खाता, सेविंग्स खाता, अकाउंट जहां पे है उसी बैंक से हम लोग ये सब ले सकते हैं। Nowadays, women are walking shoulder to shoulder with men. सभी औरतें कंधे से कंधा मिलाकर आदमी के साथ काम करने लग गए हैं। From the sanitation workers to flying a squadron, आर्मी में या एयरफोर्स में करने के लिए सभी जगह हैं। वैसे तो सारे स्कीम सभी को अप्लाइड है, लेकिन जिस तरह एक औरत अपने आप में एक विशेषता रखती है, उसी तरह प्रधानमंत्री ने भी इनको 2 विशेष स्कीम दिया है। 2 विशेष स्कीम जो इनको अपने प्रेगनेंसी और आफ्टर द बर्थ, चाइल्ड बर्थ होने के बाद इनको फैसिलिटीज मिलेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे फ्री हेल्थ चेकअप होगा गवर्नमेंट में, जो हर 9वें दिन को होता है महीने में। इनको फ्री किट और मेडिसिनल के मटेरियल देते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के में, जहां ये बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक आहार दे सकें। बच्चे होने के बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसमें 6000 रुपीज फाइनेंशियल एड मिलता है। ये फर्स्ट चाइल्ड को मिलता है, ये पहला बच्चे को मिलता है, और ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट उनके अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए रखा है, जहां जिसका मैक्सिमम टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। ये सालाना 1500 रुपया 15,000 रुपीज, और उसके बिलो एम्प्लॉयज जो सैलरी लेते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। ये न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और न्यू अकाउंट ओपनिंग वालों को ही ये स्कीम लागू होता है। इस स्कीम को लागू करने के लिए आपको आधार का जरूरत है। ये इफ यू आर एबल टू एनरोल पीपल ऑन दिस स्कीम, देन दे विल बी गेटिंग द बेनिफिट टिल 3 इयर्स। अगर हम किसी न्यू वर्कर को इस स्कीम के अंदर जोड़ते हैं, तो ये जोड़ने से वो 3 साल तक, चाहे वो हमारे पास काम करे या किसी और के पास काम करे, ये स्कीम में उसको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या? सरकार उसको 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज का पूरा बोझ सरकार उठाती है और उसको उसके खाते में जमा करती है, और उसको ये स्कीम 3 इयर्स तक उसको एक सिक्योरिटी देती है ताकि वो काम कर सके, और हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक बोझ कम करती है ताकि आदमी रहे। There is always a benefit of doubt that
people will leave and go. तो इस दौरान अगर हमें छोड़ के भी कोई और जगह जाता है तो we will not be financially burdened, as well as he will also be financially insured or covered. और इसी योजना में वो जो व्यक्ति को हम एनरोल करते हैं वो दूसरा एस्टेब्लिशमेंट में जाएगा तो उसको भी वहां पे एनरोलमेंट वही कंटिन्यू हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही अहम चीज है जो आजकल स्किल का वैक्यूम मेजर देख रहे हैं हम लोग। स्किल उतना नहीं है सभी लोगों में जो जितना हमारा रेगुलर कॉम्पिटिटिव या इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन के लिए जरूरत है। इसी के लिए सरकार अप्रेंटिस लोगों को लेके ट्रेनिंग करने के लिए सभी कंपनियों को या सभी बिजनेस हाउस को मदद दे रही है। इसके हिसाब से आपका 25% ऑफ द स्टाइपेंड अमाउंट एंड 50% ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अमाउंट जो भी बनता है वो सरकार आपके कंपनी को देती है और प्रोत्साहन करती है कि सारे नौजवान वर्कर्स अपने स्किल डेवलप करें, आपके साथ लर्न करें और उसी तरह कंपनी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कॉम्पीट करने के लिए मदद करें। और इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं और मैं आप सबको नमन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी बात सुनी। तो थैंक यू चंद्रशेखर जी, इट वाज रियली यूजफुल, बहुत ही बढ़िया था, ज़्यादा जानकारी आपने दी है। तो अभी कुछ सवाल है जो जनरल में है और कुछ पूछ रहे हैं, तो उनका मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपको और राजेश जी को, तो मे भी उनमें से आप जवाब दे सकते हो और कहीं पे भी समझो कि कुछ और वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो आप देखिए, ठीक है ना, जो आपने अभी शेयर की है स्कीम उसी में से। तो पहला सवाल होगा राजेश जी के लिए कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मुद्रा, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि भाई मुद्रा लोन ले, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा और कैसे हेल्प होगा एसएमईज के लिए और स्टार्टअप्स के लिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये जो टोटल इनिशिएटिव है ये सारे सिटीजन को हेल्प करने के लिए है, उनको मदद करने के लिए है। तो इंटरेस्ट रेट इतना भारी भी ना हो कि मैं वहां से पीछे हट जाऊं। एक तो हम आपको बता रहे हैं कि कोलैटरल कुछ नहीं है, तो हर बैंक को और हर एनबीएफसी को और हर स्मॉल फाइनेंस बिजनेस को अलग अलग बताया गया है कि आप ग्राहक देख के अपना रेट करिए, इंटरेस्ट चार्ज करिए। इसमें ध्यान रखिए सब्सिडी कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि सब्सिडी है। तो 10.75% से लेके 17.75% तक भी है, ठीक है। अभी इसको आप पत्थर पे लकीर ना समझें, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, जितना समझता हूँ 6% पे भी इंटरेस्ट दिया गया है। मैं बहुत ही असहाय हूँ, लेकिन मेरा आइडिया बहुत ही अच्छा है। मुझे पता है कि मैं अगर ये बिजनेस करूंगा तो मेरे को 6 महीने में ही ब्रेक इवन मिल जाएगा। उसमें भी बैंक मैनेजर ने अपना डिसीजन लेके 6% तक का भी इंटरेस्ट रेट दिया है। तो लेकिन आप ये मान के चले कि 10.75% से लेके 17.75% तक का इंटरेस्ट रेट है। ओके, थैंक यू राजेश जी इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, और एक सवाल है जो मैं आपको पूछूंगा कि इसके लिए कुछ कोलैटरल का जरूरत होता है क्या जब लोन हम लोग लेते हैं? नहीं। ओके, तो क्या प्रोसेस होता है, लेकिन क्या प्रोसीजर होता है, क्या एलिजिबिलिटी है इसका कि भाई कि बिना कोलैटरल दिए लोन मिले? हाँ देखिए, एक जोक था कि हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पे आपको वो सुबह 4 बजे उठाते हैं तो गिव यू स्लीपिंग पिल। तो और बैंक वो जगह है जहाँ पे वो देख लेते हैं कि आपको किसी भी एंगल से लोन की जरूरत नहीं है, तब आपको वो लोन ऑफर करते हैं। अगर मेरे पास ऑलरेडी इतना प्रॉपर्टी है, ये है वो है, मैं फिर क्यों आपसे पैसा मांगूंगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये बात है, अगर आप बिल्कुल ही असहाय हैं, माने आर्थिक रूप से फाइनेंशियली यू आर नॉट सो वेल ऑफ,
फिर भी आपके पास आइडिया ऐसा है, आपके पास स्कीम ऐसा है, आप एक प्रोजेक्ट प्लान लेके जाते हैं किसी भी फाइनेंसर के पास, यानी कि इस केस में पीएसयू, एनबीएफसी, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस, उनको बताते हैं कि ये मेरा प्लान है, मैं ऐसे करूंगा और ये करूंगा, तो वो आपको कोई भी कोलेटरल नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मुद्रा डायरेक्टली आपको पैसा नहीं देता है, वो दिलवाता है इन्हीं से, तो वो आपसे वो करवाता है, तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। आप अपना जो प्लान है, जो भी प्रोजेक्ट प्लान है, बिजनेस का जो आइडिया है, उसको दुरुस्त रखिए, उसको लेके आइए मुद्रा के टीम के पास। वो अभी उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आपको कैसे सक्सेसफुल बनाना है। अब ये समझिए कि मुद्रा का भी अपना एक टारगेट है, वो भी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे कि हमने इतने लोगों को हेल्प किया और ग्रो करने में हेल्प किया। ऐसा नहीं कि हमने पैसा दे दिया और वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, नहीं, हमने उनका हाथ पकड़ के उनको वहां तक पहुंचाया जहां तक जाना था। ये है। थैंक यू, थैंक यू। तो और एक सवाल जो है वो है कि अगर मुझे स्टार्ट करना है समझो इंडिया के अंदर कहीं पे भी, तो समझो मेट्रो सिटी में या फिर अगर टायर 2 टायर 3 सिटी में भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप्स, तो उसके लिए कुछ अलग स्कीम्स है या सबके लिए एक समान स्कीम है? हाँ, मैं आपके पिछले क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं दे पाया। आपने बताया कौन एलिजिबल है। कोई भी इंडियन सिटीजन है और उसके मन में कोई आइडिया है, वो एलिजिबल है। वो आपका जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन का उत्तर है। अच्छा, अभी आप ये पूछ रहे हैं टायर 2 टायर 3 सिटी और जो मेट्रो में जो ये है, नहीं, उसमें कुछ ये नहीं है। आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि 1 लाख या 10 लाख के अंदर में आप मेट्रो में बॉम्बे या दिल्ली, बैंगलोर जैसी जगह में कोई बिजनेस कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। आपका आइडिया कितना स्ट्रांग है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, मतलब उसको अमली जामा पहनाने में आप कितने सफल हो सकते हैं, ये आप अपने में विश्वास रखना चाहिए। बाकी मुद्रा स्कीम के जो टीम है वो भी अपना मुआयना करेगी, वो भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी देगी कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं। लेकिन हमारा तजुर्बा ये कहता है, हमारे ये इतने इतने हमारे जो ये हैं कि आप अगर इसको अगर ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे, थोड़ा 19-20 करेंगे, तो शायद आप फायदे में रहेंगे। और टायर 2 टायर 3 सिटी में तो ये काफी प्रचलन में है, क्योंकि वहां पे और कोई साधन नहीं है, जरिया नहीं है कमाने का, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अभी खाली इसका प्रचार और प्रसार ही होना जरूरी है ताकि लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद राजेश जी। और अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग वी लाइक लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, या वी कैन से फॉरेन प्रोडक्ट्स, हाँ, maybe हाँ, from China, from UK, US. So we keep buying. Okay. Now, in this COVID, we know that we are looking forward for buying Indian products. So how competent it could be like in the future? अच्छा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये एक जन धारणा बन गई है कि पड़ोसी के घर में सब्जी अच्छी बनती है, तो और घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो है, हमारे में है। लेकिन जो विदेशों से जो सामान आता है उसके लिए बड़ा चाव रहता है और लोग उसको बड़े ये से दिखाते हैं कि ये फॉरेन का है, ये यहाँ का है, वहाँ का है, ब्रांड ये सब। लेकिन इसमें हमारे मैन्युफैक्चररों को प्रधानमंत्री का और बाकी सारे मंत्रियों का ये कहना है, भाई कुछ भी हो जाए, क्वालिटी में 19 नहीं होना चाहिए, 20 ही होना चाहिए। अभी जैसा आपने देखा होगा, एक देश ने अपने प्रोडक्ट भेजे, पीपीई भेजा और कुछ ये भेजा, उसको बाकी देशों ने वापस कर दिया बोल के कि ये तो सब स्टैंडर्ड है, आप तो एक हमारे हमसे पैसा ले रहे हो इस टाइम में, और आप एक हमको सब स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट दे रहे हो। तो जैसा यहाँ पे मुद्रा स्कीम में जो लोग इन्वॉल्व है, मेक इन इंडिया में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारे पढ़े लिखे हैं और उनका काम प्रॉफिट खुद के लिए नहीं करना, देश के लिए करना है। उसी इंटेंशन से उनको उस प्रोजेक्ट में डाला गया है। ये इधर रिटायर्ड आईएएस होते हैं या तो किसी बड़े बिजनेस हाउस से आए होते हैं, तो वो ये इंश्योर करते हैं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो इसलिए आप कुछ भी कर लें, क्वालिटी में ये नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतना हो गया है। और अगर आप एक ब्लैक लिस्टेड वेंडर हो जाएंगे तो आप दोबारा किसी भी जगह लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और वैसा ही रहेगा। तो जैसा एक तरफ गंगा साफ हो रहा है, ट्रस्ट में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी और उसका प्रोडक्ट भी साफ होगा। अभी मेरे को वो दिन दूर नहीं लगता जब अमेरिका वाले भी इंडिया की तरफ देखेंगे और बोलेंगे कि हमको इंडिया का माल चाहिए। बढ़िया है, जी, इट्स गुड एक्चुअली, तो बहुत बढ़िया है। तो चंद्रशेखर जी के लिए, आपके लिए सवाल ये है कि हम लोग ये स्किल इंडिया का जो बात कर रहे हैं, तो ये किस एंगल से बिजनेस ओनर्स या जो बिजनेस इंडिया में है
उनके लिए हेल्प हो सकता है? ये स्किल इंडिया बिजनेस ओनर्स के लिए एक तो फाइनेंशियल हेल्प होगा, दूसरा अप्रेंटिस लेने से उनको एक कारीगर को, जैसे कोई रॉ पत्थर मिलता है उसको अपने तरीके से एक मूर्ति बनाता है, उसी तरह रॉ कारीगर को लेके वो एक अपना स्किल्ड एम्प्लॉय पावर जनरेशन कर सकता है, जो नेशन और अपने कंपनी को बहुत ही मजबूत सपोर्ट दे सकता है। इसी और फाइनेंशियल भी तो हेल्प सरकार दे ही रही है कि वहाँ जिसको 25% उसका जो स्टाइफेंड बनता है वो दे रही है, और उसका 50% का जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है वो भी सरकार ही देती है। तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस को लेना है, और जिस तरीके को हम लोग जैसे एक अलग एंटिटी है हर एक व्यक्ति, उसी तरह हर एक सिस्टम, हर एक फैक्ट्री या हर एक यूनिट एक सेपरेट एंटिटी है जो अपने सर्कमस्टेंसेस और जिसके स्किल सेट से ही वो स्ट्रेंथन हुआ होता है। अगर हम नए आदमी को वहाँ पे लेके डेवलप करेंगे तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। अगर नया जो स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर कहीं और से आप लेके आएंगे तो उसको ट्रेन करने में के लिए ही आपको टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आई थिंक स्किल इंडिया डेवलपमेंट हम लोगों को बहुत ही मजबूत करेगा आगे के दौर में, और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करेगा हमारे कंपनियों को। थैंक यू चंद्रशेखर जी। मैं वही समझ रहा हूँ कि वी आर हैविंग लॉट ऑफ माइग्रेशंस हैपनिंग अक्रॉस इंडिया बिकॉज ऑफ कोविड, पोस्ट कोविड. So, abhi, if I see, there are like 15 to 20 lakhs people coming from Karnataka are going to Bihar, going to UP. So from various states going back to their native. So whatever they were working, whatever the skills they had till now, जितने भी skills उनके पास थे, आज अभी वो दूसरे अपने अपने गांव में जा रहे हैं. तो अभी ऐसा होगा कि जो जॉब या जो बिजनेस या जो कंपनी वो ज्वाइन करेगी, तो उस जो स्किल उन्होंने सीखा होगा पहले, वो सब काम नहीं आएगा, क्योंकि जो सेट ऑफ कंपनी वो वहां पे होगी उनके लोकल में, नियर बाई नेटिव या नियर बाई स्टेट में जहाँ पे भी वो रहते हैं, तो वहाँ की पूरी क्या बोलते हैं स्किल्स उतना नहीं रहेगा. तो जो उन सीखे आए, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया अवसर है कि वो अपना स्किल बढ़ा सके. मतलब दे कैन टेक इट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट इन द मार्केट, व्हाट इज मार्केट लुकिंग फॉर, या फिर क्या कंपनी वहां पे सेटअप हो रही है, उस कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस बेसिस पे भी वो स्किल डेवलप कर सकती है अपना पर्सनली, और कंपनी वाले भी उनको एंकरेज कर सकते हैं. तो ये स्कीम बहुत बढ़िया है मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्यूचर के अंदर करीब करीब हम लोग देख रहे हैं अंदाज से 4 से 5 करोड़ लोग को स्किल डेवलप करना होगा. तो अगले 2 साल अपना इतना कठिन काम है कि भाई इतना स्किल डेवलप हम लोग प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगे आनी चाहिए इस बारे में करने के लिए. और दूसरा है कि जो भी कंपनियां हैं जो हायर कर रही है नया टीम या पुराना टीम को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये स्किल इंडिया का सहारा लेके वो लोग अपना अपग्रेड कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू शेयर, राइट? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें जब भी हम लोग नए आदमी को लेते हैं तो उसको ट्रेन करके अपने जो रिक्वायरमेंट है उसी की तरफ से उसको सिखा सकते हैं, और हमें फाइनेंशियल बर्डन भी कम होता है। सरकार जब मदद करती है तो हमें फाइनेंशियल बर्डन भी कम होता है। और अगर हम इस आदमी को कोई और स्कीम में, न्यूज़ का एम्प्लॉय स्कीम में अगर हम इसको अंदर करते हैं तो उसको भी 3 इयर्स तक बेनिफिट मिलता है। तो पोस्ट कोविड this is very beautiful scheme which we all can implement in our organization. थैंक यू चंद्रशेखर जी. और एक मेरा सवाल है कि जो अटल पेंशन योजना जो है, ओके, तो आपने जहाँ मेंशन किया था कि 18 साल से 40 साल की उम्र तक आप पेंशन के लिए हर साल आपको कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है? तो अभी समझो कि मैं अगर अपना करियर स्टार्ट करता हूँ 30 साल की उम्र में, तो मेरे को कितने साल तक मेरे को पेंशन मतलब ये भरना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? आपको इस योजना में आप जब तक काम कर रहे हैं मिनिमम 20 इयर्स आपको इसके अंदर भरना पड़ेगा।
अगर आप मान लीजिए आप 20 साल में काम शुरू करते हैं और आप इस योजना के अंदर आप किसी को लेके आते हैं, तो उसके 40 के उम्र आने तक उसको ये पैसे भरना पड़ता है, और ये पैसा एक फंड में आपके अकाउंट आपके पास रहेगा, जो आप जब 60 इयर्स के हो जाओगे या 60 साल के हो जाओगे तब से आपको पेंशन के रूप में वापस मिलेगा। मान लीजिए अगर आप 40वीं साल पे आप इस योजना में आते हैं और 60 साल तक काम करते हैं, यानी कि 20 साल तक काम करते हैं, तो 20 साल जब भी आप 60 साल के हो जाओगे उसके बाद से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि आपको किसी भी टाइम पे स्टार्ट करो, 18 इयर्स पे टाइम में स्टार्ट करो या 40 ईयर के एज में टाइम में स्टार्ट करो, 20 इयर्स आपको भरना पड़ता है। Okay. Okay, great. Anything you can share about women empowerment or women employees related things? Maybe MSM scheme या जो है तो शेयर कर सके। अभी आपने यहाँ पे वुमेन स्कीम्स बताया है जो when they get pregnant, okay, so they have all the benefits. Yes. Yeah. For So that, anything else we have or anything we can share now, or we can say okay we will share it later, that's okay. वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत जोर सरकार दे रही है, और ये एक अपने आप में बड़ा सा एक स्कीम भी है जो हम लोग अभी थोड़े से टाइम में नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट जब भी ट्रेनिंग होगा तब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन डिपेंडेंट स्कीम्स को लेके प्रचार कर सकते हैं। बढ़िया है। सो राजेश जी, थोड़ा मेक इन इंडिया में थोड़ा बहुत और कुछ जानकारी मिल सकता है? जैसे मेक इन इंडिया में समझो अगर किसी को शुरुआत करना है तो क्या इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या एलिजिबिलिटी हो सकता है कि वहाँ से गवर्नमेंट की मदद मिले, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ तक हम लोग ये ले सकते हैं कि ओके इतना हम अमाउंट हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, या बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी मेक इन इंडिया रन कर सकते हैं? तो उसके बारे में कुछ जानकारी आप दे सको तो। हाँ, ये मेक इन इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया हो, पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सोच। आप करना क्या चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो, ये आप एक प्रोजेक्ट प्लान बनाइए। प्लान बना के आप मेक इन इंडिया की टीम को अप्रोच करिए। उनका एक अलग से वेबसाइट है, या तो स्टार्टअप इंडिया। अगर आपका कोई यूनिक आइडिया है तो स्टार्टअप है। आप ये समझिए कि स्टार्टअप इंडिया, मैं अगर अभी यहाँ पे एक दुकान खोलूंगा, बोलूंगा स्टार्टअप है, क्योंकि मेरे परिवार में इससे पहले कोई दुकान नहीं था, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये स्टार्टअप नहीं, वो स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप वो है जो बहुत ही अनोखा आइडिया है, ये मार्केट में ऐसा आइडिया नहीं आया है, तो आप वो जैसे नया एक ऐप बनाना हो, ये ऐप किसी भी चीज में नहीं था, तो अगर वो आप बना रहे हैं तो वो हाँ स्टार्टअप में आ जाएगा। लेकिन ये ऐप कितने लोगों को हेल्प करेगा, इससे क्या देश को फायदा होगा, तो ये उसके लिए हेल्प मिल सकता है। तो अगर आपका वो है स्टार्टअप इंडिया। लेकिन मेक इंडिया में आपने सोचा है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, तो फाइनेंस इतना जरूरी नहीं है जैसे नॉर्मली होता है कि हाँ भाई मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं भी इसको डालता हूँ मार्केट में और इसका ये करता हूँ। वो कर सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी आपके लिए यहाँ पे रास्ता खुला है। आप अपने आइडिया के साथ यहाँ पे जाइए, बोलिए मेरे को फाइनेंस की जरूरत है। वो आपको फाइनेंस के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट को देखेंगे, फिर वो देखेंगे नहीं इसमें शायद एक चीज कमी है, या 2 चीज कमी है, या 5 चीज कमी है। फिर वो जैसे मैंने बताया हैंड होल्डिंग और सिंप्लीफिकेशन, वो आपको पूरा एकदम साधारण बना देंगे। आपका हाथ पकड़ के बोलेंगे आप यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे ऐसा करिए, या तो इन इंसान से मिलिए, या इस व्यक्ति से मिलिए, इस डिपार्टमेंट से मिलिए। तो वो आपको हर दौर में, मतलब हर स्टेज में आपके जो बिजनेस का, वो आपको हेल्प करेंगे। आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि आपका आइडिया होना चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से कुछ कैपिटल लगा सकते हैं और सरकार भी कुछ दे रही है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन पैसा जरूरी नहीं है इनिशियली, ये मेरा कहना है। ओके, ठीक है, तो बहुत बढ़िया आपने बताया है। और जो मुद्रा स्कीम्स वगैरह है तो किस तरह के बिजनेस के लिए यूज हो सकता है? किसी भी तरह खाली ये देखना है कि 10 लाख के नीचे का होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि टेलर शॉप हो, सैलून हो, बुटीक हो, ब्यूटी पार्लर हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो,
आइसक्रीम पार्लर हो, जो भी आप जितना भी सोच सकते हैं 10 लाख के नीचे, ट्यूशन सेंटर हो, वो सब इसके अंडर में आ जाएगा। और ये कमर्शियल सेटअप के लिए हो, आप टू व्हीलर अपने खुद के लिए अगर खरीद रहे हैं तो उसके लिए नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं बेकरी आइटम प्रोड्यूस करता हूँ और दूसरे बेकरी को या दुकानों को सप्लाई करता हूँ, उसके लिए मेरे को टू व्हीलर चाहिए तो वो लोन मिलेगा। तो ये कमर्शियल वायबल होना चाहिए। और फिर ओके, और कुछ स्कीम है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम्स वगैरह कुछ है जो आप शेयर कर सकते हो या बोल हाँ, सकते हो? देखिए ये जैसे मुद्रा में मैंने बोला माइक्रो फाइनेंस स्कीम, अभी आपको कोई बिजनेस नहीं करना, आपका सेट बिजनेस है, लेकिन आपके पास सरप्लस फंड है, ठीक है, तो आप इस फंड को कैसे री इन्वेस्ट कर सकते हो, तो भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो मुद्रा स्कीम के साथ और बोल सकते हो कि मैं एक माइक्रो फाइनेंसर बनना चाहता हूँ। अगर किसी को 1 लाख रुपए तक का राशि की जरूरत होगी, वो मेरे को संपर्क करें। आप खाली उसके लिए मेरे को ये गारंटी दिला दें। अच्छा, इसके लिए भी आपको पैन कार्ड उसकी कोई जरूरत नहीं, खाली आपको एक केवाईसी फिल करना है, ठीक है, यानी कि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट हो, ये वो सब कुछ नहीं होता है। ये ध्यान रहे कि ये हेल्प आपको करना चाहते हैं, अगर जिसके हेल्प करने की नीयत है ना, वो इतना बहाना नहीं ढूंढेगा, ये लाओ वो लाओ ऐसे लाओ वैसे, कल लाओ परसों नहीं, इनका मकसद ही आपको हेल्प करना। तो इसीलिए आप पैन कार्ड भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन केवाईसी आप कर देंगे और मुद्रा टीम आपको बोलती है कि हाँ ये इंसान ठीक है, आप इनको 1 लाख दे दें, तो आप वैसा भी पार्टनर, तो वैसा भी बन सकते हैं, आप माइक्रो फाइनेंसर भी बन सकते हैं, आपको उसके हिसाब से भी जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। ओके, और कुछ थोड़ा वो डिजिटल इंडिया के बारे में और कुछ जानकारी, जहां अगर समझो हमको कुछ डिजिटली कुछ स्टार्ट करना है या कुछ ऐप लॉन्च करना है या कुछ बिजनेस कर सके, वहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले या गवर्नमेंट को हम लोग ऐप भेज सकते हैं, तो हाँ कुछ उस बारे में आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी हम जो बात भी कर रहे हैं एक दूसरे से, वो डिजिटल इंडिया के द्वारा ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बात ये है कि अभी जो आपने बोला फेसबुक हुआ, जूम हुआ, ये सब हमारे देश के नहीं है, ठीक है। दुख के साथ बोल रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ ये सब हम अपने देश का, हमारा मेक इन इंडिया हम इतने बात कर रहे हैं, हमारे देश का क्यों नहीं हो सकता है? क्या हम इतने कैपेबल नहीं है? वर्ल्ड की 90% आईटी तो हम ही से होती है। यूएस में जितने दुनिया में जहां जहां बैठे हैं सारे आईटी इंजीनियर्स तो हमारे ही हैं। तो अगर हम दुनिया के लिए बना सकते हैं, हम अपने लिए नहीं बना सकते? तो ये डिजिटल तो फ्यूचर ही है और डिजिटल से ही अब सब कुछ होगा, ठीक है। तो अगर हम ये खुद का, मैं अगर एक ऐप डेवलप करता हूँ, मैं बोलता हूँ 50 लोग एक साथ आपस में बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, 40 मिनट का कोई इसमें प्रोविजन नहीं होगा, घंटों घंटों बात कर सकते हैं एक दूसरे को देख के, चलिए। तो गवर्नमेंट उसको दोनों हाथों से लेगी और आपको मतलब मुकुट बनाएगी, आपको आपको आपका ताजपोशी होगा अगर आप ऐसा करेंगे। और ऐसे बहुत सारे जरिए हैं डिजिटल में जिसमें आप करोड़ों कमा सकते हैं। मैं करोड़ों बोल रहा हूँ, शायद कम बोल रहा हूँ। अगर आज की डेट में अगर कहीं आप पैसा कमा सकते हैं तो है ऐप में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर होके यूट्यूब में एक अपना चैनल बना के जिसमें मैक्सिमम सब्सक्राइबर बना सकते हैं। तो अगर आप एक ऐप भी खोलते हैं जो जन कल्याणी हो, तो लोग तो आपको वैसे ही ये करेंगे। उसके बाद आप शायद ऐप का फीस लगा दें, 2 रुपया हो या 25 रुपया हो या 25 पैसे भी हो। अगर 130 करोड़ की जनसंख्या में 50 करोड़ भी लेंगे तो 50 करोड़ इंटू 25 पैसा, आपका समझ लीजिए, मैथमेटिक्स करते रहिए। तो डिजिटल में इतना अनगिनत है। और विद इन, अच्छा अभी हमने 4-5 स्कीम मैंने गिनाया, 4-5 स्कीम चंद्रशेखर जी ने गिनाया। वैसे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना में कम से कम 200 ऐसे स्कीम हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें, आपको 1 महीना मेरे को देना पड़ेगा और 1 महीना चंद्रशेखर जी को देना पड़ेगा समझाने के लिए। खाली बात यह है कि आप फायदा कैसे उठा रहे हैं। तो हम ऐसे बगान में अभी आए हैं कि फूल सब नीचे गिरे हैं, हमको खाली झुके उठाना है। और डिजिटल तो फ्यूचर है। अगर आप इसका फायदा अभी नहीं उठाएंगे ना, तो ये बस चली जाएगी, आप फिर बोलेंगे अरे यार मैं तो इस बस में बैठ नहीं पाया। तो अभी मौके का फायदा उठाइए, और इसे होता है मौके में चौका मारना, डिजिटल इंडिया। थैंक यू राजेश जी। चंद्रशेखर जी, थोड़ा बहुत और मैन पावर के बारे में जो आप बोल रहे थे, एम्प्लॉइज को किस तरह से रिटेन करना चाहिए, क्या क्या हम लोग, क्योंकि अभी चैलेंज है ये जो पोस्ट कोविड है कि बहुत लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है या बहुत सारे लोगों को सैलरी बहुत कम मिल रहा है, तो उसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, एक ये आप बता सकते हो। दूसरा मेरा सवाल और एक होगा कि हम लोग जो एम्प्लॉयज है उनको कैसे मैनेज या रिटेन कर सके लॉन्ग टर्म के लिए,
तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वेदर इट कैन बी फ्रॉम प्रधानमंत्री योजना भी हो सके, या फिर इसके अलावा और कोई दूसरा जो भी आप बोल सको उस एम्प्लॉयज रिटेनिंग के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है अपना बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, स्केल करने के लिए। सर जैसे आप जानते हैं एम्प्लॉयज जो भी हैं वो भी इंसान ही है, और इंसान का मन और पैसे के को ही नहीं देखता है, वो बहुत कुछ और चीज़ों को देखता है। लेकिन जैसे उसको क्या कितना इज्जत मिलता है, उसको क्या महत्वपूर्ण समझा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब 3-4 और चीज़ें हैं जो मैन पावर को डिफाइन करता है कि वो आपके साथ कितना दूर और कितनी लंबी तरह से जाएगा। कोविड-19 एक ऐसी सिचुएशन है और लॉकडाउन ऐसा टाइम आया दिया है जिसको एक लेबर को या एक वर्कर को या एक ओनर को बहुत कुछ समय दिया अपने अंतर आत्मा में जाके ढूंढने का। इसमें दोनों ने या तीनों तरह के लोगों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश किया है और एक दूसरे के लिए कुछ करना है करके सोचने के लिए किया है। मैं बहुत वर्कर्स को जानता हूं जो लोग 2-2 महीने से सैलरी नहीं दिया फिर भी सिर्फ एक बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई कोई हमसे कुछ बात कर दे ताकि हम लोग तसल्ली रहे। तो one of the important thing to win over the workers at this time is just to have an empathy towards them. मैं आपको एम्पैथी दिखाने के लिए बोल रहा हूं, सिंपैथी नहीं। सिंपैथी उनको नहीं चाहिए। सिंपैथी दिखाएंगे तो कार्मिक बहुत ही स्वाभिमान है, वो सिंपैथी नहीं चाहता, एम्पैथी चाहता है। उसको आप सुनिए, उसकी तकलीफों को सुनिए और जो भी होता है आप उसकी मदद करें, तो इससे आदमी आपकी तरफ आता है और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ये जो मुसीबत के समय है उसको आपको पार करने के लिए आपके साथ रहेगा। ये मेरा वादा है। ओके, थैंक यू चंद्रशेखर जी। राजेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, इसी संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगा, बचपन से हम एक मुहावरा सुनते थे और ये पहेली भी है, आप अगर इसको बूझ सके तो अच्छा है। पहेली ये है, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। ठीक है, तो इस तीनों का आंसर एक ही है। तीनों का आंसर ये है कि फेरा नहीं था। अगर आप रोटी बना रहे हैं और एक साइड में वो जल रहा है, अगर उसको फेर के दूसरे साइड नहीं करेंगे तो रोटी जल जाएगी। अगर पनवाड़ी बैठा है और उसके कोई ग्राहक नहीं है, उसने बाल्टी में पानी रखा है, पान रखा है, अगर वो पान को इस साइड से उस साइड नहीं करेगा तो एक साइड वो गल जाएगा। अगर आप घोड़े पे बैठना चाहते हो, उसको थोड़ा सा सहलाएंगे नहीं और सीधा बैठ जाएंगे, वो घोड़ा अड़ जाएगा, आपको गिरा देगा। तो तीनों में क्या है, थोड़ा सा सहलाना पड़ता है। रोटी को इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड करना पड़ता है, पान को इस साइड से उस साइड करना पड़ता है, घोड़े को बैठने से पहले थोड़ा सा सहलाना पड़ता है। अच्छा, वही आपको एज ए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के लिए भी करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्यार भरी बातें, थोड़ा उनके घर के बारे में हालचाल पूछ लेना, और भाई कैसा चल रहा है। अगर कुछ हो सकता है, आप सक्षम हो, उनको खाना दिला देना या अपने यहाँ पे ठहरवा देना या कुछ मेडिकल हेल्प दे देना, ये भी करना आज की डेट में मैं समझता हूँ वो सहलाने वाली बात होगी। तो ना तो आपकी रोटी जलेगी, ना आपका घोड़ा अड़ेगा, ना आपका पान सड़ेगा। सही बोल रहे हो। नाइसली पुट राजेश। अच्छा, जैसे अभी हम लोग करते हैं कि भाई छोटा मोटा चीज है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन है या फिर बर्थडे विश भेज दिया या एनिवर्सरी विश भेज दिया, तो उनको लगना है कि हाँ भाई अपना अपनापन है। तो कि भाई एम्प्लॉय, हमारा जो एम्प्लॉयर है मतलब ओनर है, वो हमारा बहुत देख रेख कर रहा है, हमको बहुत पूछता है, तो वो उसके साथ रहना ज़्यादा चाहेंगे। मेरा कहना वही, मेरे को भी वही लग रहा है, क्योंकि जब मैं अभी मेरा जो कंपनीज है वहाँ पे एम्प्लॉयज 8-8 10-10 साल रहते हैं, जबकि वहाँ पे उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि आईटी कंपनी में तो आपको मालूम है कि हर जगह आपको हर 6 महीने 12 महीने में सैलरी डबल का ऑफर आ जाता है। हाँ, तो अभी पता नहीं है पोस्ट कोविड का, लेकिन हाँ, तो वो हम लोग समझ के चलते। तो एम्प्लॉयज को अगर हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, थोड़ा बहुत नर्चर करते हैं और उनको हाँ ये जो ट्रेनिंग वगैरह हम लोग अगर प्रोवाइड कर सकते हैं,
तो जिससे उनका और मनोबल बढ़े और कार्य कुशलता बढ़े, तो जिससे वो आगे जाके हमारी कंपनी से ज्यादा जुड़े रहे। तो that is a very great thing. So now we'll move on. So thank you for everyone for sharing your inputs, and it was a great thing of sharing the questions. So maybe I'll ask Chandrasekhar to put some pointers over the next slides. Okay, so let me take you to the next slide. Yeah. So over to Chandrasekhar ji. Sir, I would request all the viewers that on behalf of Pradhan Mantri Jal Kalyankari Yojana Prachar Prasar Abhiyan, we request you to promote Bheem app and Jan Aushadhi Kendras. Bheem app is nothing but Bharat Interface for Money. This is developed by National Payment Corporation of India and is one of the safest financial app which can be used. Instead of using Google Pay or आपका Paytm, I request you all to promote Bheem app. Even if you are making some online payment modules, you can definitely bring in Bheem app to the payment gateway. Like that, Jan Aushadhi Kendra is very good, and it is a replacement for कॉस्टली मेडिसिन। जैसे कि राजेश जी ने बताया आपको कि ये बड़े बड़े कंपनियों अपने ओवरहेड्स की तरह से आपको ज़्यादा चार्ज करते हैं। वही कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो आपको प्राइमरी तौर से मिलेगा, वहाँ पे आपका कॉस्ट भी कम रहेगा और वो आप उस जैसे बेसिक मेडिसिन को आप बढ़ावा भी दोगे। तो माय humble request to you all is please promote Bheem and Jan Aushadhi Kendra in your daily life. Thank you. थैंक यू। तो बहुत बढ़िया है आपने जो शेयर किया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलता हूँ कि जो अपना ई कॉमर्स वगैरह सेटअप कर रहे हैं या जो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या बेच रहे हैं, तो वो लोग भीम को इंक्लूड करें पार्ट ऑफ इट। और दूसरा है कि जन औषधि केंद्र के बारे में बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी है, शेयर किया हुआ ऑलरेडी PMJKY PPA नेशनल फेसबुक में वगैरह भी है इंफॉर्मेशन और वेबसाइट पे है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि जन औषधि केंद्र नहीं है, वहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी है सेटअप करने के लिए। तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, you can set up a new ventures, you can get into new ventures, so that is also a good part. And one more question has come from industrial electronic component dealer. Okay, so they are asking how can we get MSME certificate or registration? Okay, and this question has to be asked by Arun Lunawat actually, okay, from Bangalore. So anyone want to answer this, or राजेश जी आप बोलना चाहेंगे MSME सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए? चंद्रशेखर जी शायद बोल सकते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं या आप लेबर इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के डिपार्टमेंट के वेबसाइट जाएंगे तो आप MSME के सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी है आपके पास आपका ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड होना चाहिए और आपका ऑर्गेनाइजेशन का ESI PF नंबर्स सभी होना चाहिए। हाँ, सो MSME अगर आप स्टार्टअप्स हो एक्चुअली, तो MSME मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है MSME, क्योंकि आपको बहुत सारे स्कीम्स मिलते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स है, जैसे रिडम्पशन वगैरह। समझो आप ट्रेडमार्क करना चाहते हो तो अप टू 50% आपको रिइंबर्समेंट मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी MSME इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह या एक्सपोज, तो वहाँ पे आपको इनवाइट किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा अगर हम बोले MSME का बेनिफिट तो बहुत है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स बेनिफिट है as a startups and all those stuff. So if you're an MSME registered, yes, you can go to directly MSME website and register yourself. The cost is very minimal. I think it would be some $100 to $500. That's it, not more than that. Or it will be
सो ज़्यादा जानकारी वहीं पे है, और अपने जो ऑडिटर वगैरह जो आप कर सकते हैं, वहाँ से भी आप उनसे पूछ सकते हो। और और एक बात है कि और एक जो क्वेरी है वो ललित जी का है, ललित जी दाखलिया, कि भाई अगर असेंबली यूनिट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग असेंबली यूनिट अगर स्टार्ट करते हैं इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से वो हेल्प कर सकती है? आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट से ने रॉ लाया, इंडिया मटेरियल में लाया है और यहाँ पे आके असेंबल किया है। इट इज नथिंग बट रीपैकेजिंग और मतलब प्रोडक्शन जैसे ही काउंट होता है एक्चुअली। नहीं, अगर आप मान लीजिए आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद उस चीज को इस्तेमाल करके और उसके अंदर आप अपना वैल्यू ऐड करके एक नया चीज बनाते हैं, असेंबली करके 4-5 आइटम असेंबली करके बेचते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई ज्यादा ये नहीं है। अगर आप उसी चीज को अगर आप बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको अंडर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आपको बेनिफिट मिल सकता है। MSME as such is not directly connected or will not be directly helping you, but it will be a base for you to do all this transaction. Thank you. So thank you for this information, and thank you Rajesh ji and Chandrasekhar ji for joining this session. It has really useful, and you have given more lot of information. So I would like to thank bottom of my heart. Okay. So before that, I would like to also thank our PMJKY PPA, that is Pradhan Mantri Jan Kalyankari Yojana Prachar Prasar Abhiyan के national president Pushesh Arya ji, and our राष्ट्रीय महामंत्री शशांक चोपड़ा जी, और राष्ट्रीय प्रशिक्षक that is national trainer Sri Rajmani ji, okay, and we have national IT head. National IT head we have is क्या नाम है भाई, ओके, मिस्टर दीवान, ओके, प्रशांत दीवान। तो उसके अलावा है अशोक नेगी जी, तो बहुत लोग हैं जो उन्होंने सपोर्ट किया है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। सो and also I want to like to thank all these our back end team, that is our president श्रीमती अनिमिता रानी पांडे जी, और जो प्रेसिडेंट है कर्नाटका की PMJKY PPA, और दिनेश हार्दिक पटेल, भरत कुमार जैन, चित्रासन जी, रविंद्र जी का कुलकर्णी, ललित दाखलिया जी, अशोक राजनेगी जी। तो इन लोगों ने, इन सपोर्ट से हम लोग एक्चुअली आज ये ऑनलाइन लाइव फेसबुक इवेंट कर पाए हैं, जो नेशनल PMJKY PPA और इसके अलावा बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स में वगैरह भी लाइव हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप में तो करीब करीब मेरे जो देख रहा हूँ मैं, करीब करीब हजारों लोग जुड़े हुए हैं इस फेसबुक लाइव से, तो उनका धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपना टीम, मेरा नाम है कुशाल जैन, जो स्टेट ट्रेनर और यूथ प्रेसिडेंट है कर्नाटका PMJKY PPA कर्नाटका के, और चंद्रशेखर जी एसोसिएट ट्रेनर है PMJKY PPA कर्नाटका, और राजेश जी, राजेश राउत एसोसिएट ट्रेनर है PMJKY कर्नाटका के लिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। You have made lot of information you have provided, which is really useful. So we would like to also thank Bangalore Electronic Dealers Association, who has come forward to partner with us and promote us along with it. And almost I think most of their association members are already seeing live on Facebook Live because of our special person, that is our IT cell member, national IT cell member, Dinesh Lalit Dakhlia ji, and he's also IT cell member of Karnataka PMJKY PPA. So because of his support, we could have done this. And yes, this information what we have provided is useful in a long term, and we will come back. हम लोग वापस आएंगे और ज़्यादा जानकारी देने के लिए और डेप्थ में जाने के लिए, क्योंकि आज हम लोगों ने अपना ये पहला सेशन था, मतलब PMJKY PPA कर्नाटका और इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के हिसाब से। तो हम लोग और इस डेप्थ में जाएंगे कि जहां हम लोग स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड जाके बात करेंगे। समझो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ही बात करेंगे, जैसे मेक इन इंडिया स्पेशली।
अगर स्टार्टअप्स है तो स्टार्टअप रिलेटेड ही बात करेंगे। तो उस तरह से हम लोग स्पेसिफिक रिलेटेड टॉपिक से आएंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके जो सबके लिए यूजफुल हो। क्योंकि एक है कि अपने पास जो नॉलेज है और जो हम लोग अगर शेयर करते हैं तो और लोगों से ज़्यादा शेयर करने से और नॉलेज बढ़ता है। मेरा कहना वही है। आप लोगों से भी वही विनती है कि आपको अगर कोई सवाल वगैरह जो भी है आप अपने फेसबुक पेज पे जहाँ पे भी आप लाइव देख रहे हो वहाँ पे आप डाल दीजिए। हमारी टीम आप वो सवाल का जवाब आपको भेज देगी पर्सनली। और अगर कुछ त्रुटि हुई हो या कुछ हम लोगों ने सही से अगर कहीं पे गलती हुई हो तो हमें माफ करें। और थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग एंड जॉइनिंग अस। आई लाइक everyone's energy and the excitement and the amazing thing has happened today that we are here and everyone has spoken well spoken, our trainers, associate trainers, and so I would like to thank you on behalf of PMJKYPPA National and PMJKYPPA Karnataka and Bangalore Electronic Dealers Association. So we would like to thank you all. Have a great day. Thank you.